evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's another very important webinar on assessment under GST. As you know that on this subject, a very young and energetic and very experienced CA Nabya Malhotra ji with us. I welcome you Nabya ji. I also welcome all the Thank you, sir. attendees. To introduce him briefly, CA Nabya Malhotra ji is an associate member of ICI since January 2016. He has also done his graduation from University of Delhi. As a post-qualification course, he has also completed his diploma in DISA from ICI. Further, he has also completed his master in commerce this year. He has successfully cleared the GST certification held by ICI as post-qualification certification. Having done his articleship from Thakur Vaidyanath Iyer and Company, one of the top firms in Delhi, he holds a diverse exposure to statutory audit, risk audit, and other management consulting. Currently, Nabyaji is forming part of the faculty of the Institute of Chartered Accountants of India for GST and Financial Management. He is also leading the team for seminars, workshops, and awareness camp on latest topics on Pan India basis. Nabyaji is a regular partner at various respected forums and platforms, including the ICI, ICWAI, for its member and student. He is a faculty in the NIRC of ICI. He has also deliberated the seminar, workshop, and open discussion in various educational institutions all over NIR, Northern India, including the KMC College and Maharaja Agreshan College of the University of the Delhi. His most prestigious deliberation includes session to the senior IAS officials and military officials at the Indian Institute of Public Administration, Training and Research. He has also deliberated to the senior banking official at the National Institute of Banking Students and Corporate Management. He is known for his analytical and lucid approach of deliberations, practical illustration, and case study based ideology is the primary base of his encounter to GST matter. This is the brief introduction of today's our learned speaker. With this, I welcome him again and over to you, sir. Over to Nabyaji, sir. Thank you so much, Rajesh ji, for this kind and prestigious opportunity. And to all the members, नमस्कार आप सबको. और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मैं राजेश जी की देखा था बैक टू बैक जीएसटी पे सीरीज चलती थी या कोई important topics थे. Assessment cannot be left, sir. Assessment cannot be left. Ultimately, everything goes into lastly assessment. And assessment particularly I found very interesting and innovative topic because it is the future of GST that we all have to face. Regarding GST बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और कॉन्स्टेंटली चेंज होते आज जो हम जीएसटी देख रहे हैं दैट 1 जुलाई 2017 से लेकर आज अगर हम कंपेयर करें, सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन जीएसटी पर्टिकुलरली. लेकिन असेसमेंट प्रोविजंस अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं प्रॉपर्ली. अगर एक्टिवेट हुए हैं तो बहुत सिलेक्टिवली चूजन मैनर में सिलेक्टली एप्लीकेबल हो रहे हैं. मतलब प्रैक्टिकली उनको अभी असेसमेंट्स को स्टार्ट नहीं किया गया. तो अगर हम असेसमेंट्स की बात करेंगे तो आई विल पर्टिकुलरली ट्राई टू कवर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एज वेल जो आज की डेट में लग चुके हैं और स्टार्ट हो चुके हैं असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर. सो आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन एंड वेरेवर आपको लगे जहां पर कुछ नोटिंग करनी है आप साथ साथ नोटिंग भी कर सकते हो. और लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग. जो भी क्वेश्चन आंसर हैं चैट बॉक्स में साथ साथ लिखते जाएंगे या आई थिंक जैसे राजेश जी कहेंगे Q&A में लिखना है या क्या करना है तो हम उस हिसाब से करेंगे. बट yes, we have dedicated time in the last for question answers also. But simultaneously आप chat box में लिख सकते हैं अगर कुछ important लगता है आपको. I think screen sharing start हो चुकी है. Yes, sir, आप लोगों yes, को sir. screen दिख रही है सर. जी सर, जी सर. सर मैंने ना chat box भी खोल रखा है. So if anybody wants to write in chat box, they can write it side by side. So let us talk today about certain things called assessments. सर असेसमेंट्स इन जीएसटी की बात कर रहे हैं
असेसमेंट्स जब हम बात करते हैं तो देयर आर 6 टाइप ऑफ असेसमेंट्स डन इन जीएसटी। 6 किस्म की असेसमेंट है जीएसटी के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Particularly to share with all the members, since जब हम 6 असेसमेंट्स की बात करते हैं तो इसी के अंदर स्क्रूटनी भी कवर्ड होती है। इसके अंदर मैं बात करूं अगर सेल्फ असेसमेंट की, तो मैं साथ साथ सर सेक्शन नोट डाउन कर रहा हूँ। सेक्शन पहला है 59, 60, 61, 62, 63 और 64। ये हमारे असेसमेंट के 6 सेक्शंस है। लीगैलिटी में बात करें, पहला आता है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रोविजनल असेसमेंट। थर्ड मेरे पास आता है, जो ये मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, आप देखिए ग्रीन वाले मोस्टली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो चुके हैं। ये है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, ऐसे ही मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो सेक्शन 62 भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो चुका है। दैट इज अबाउट नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स। जो रिटर्न नहीं भरते उनकी नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स में असेसमेंट की जाती है। 64 में क्या 63 में क्या कवर किया जाता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। 64 में क्या कवर किया जाता है? तो यहाँ पर ये भी मैं प्रैक्टिकली अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ इसलिए इसको ऐसे लिखूंगा। दैट इज अबाउट समरी असेसमेंट। ये तो हो गई लीगैलिटी में बात। ये तो हो गई लीगैलिटी में बात कि लीगली क्या क्या सेक्शंस को कवरेज की जाती है। अब मैं थोड़ा सा इसको लेमन टर्म्स में आपके लिए साथ साथ लिखता हूँ। सर सेल्फ असेसमेंट से तो हम परिचित हैं सबके सब, वी आर ऑल अवेयर अबाउट सेल्फ असेसमेंट्स, जहां पर असेसी बाय हिज ओन डिक्लेरेशंस करता है और असेसमेंट करता है। अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ अप दे रहा हूँ कि क्या क्या किस्म की असेसमेंट्स हैं, और डेप्थ में जाएंगे और कैसे उसको कोरिलेट करेंगे चीजों के साथ। मैं प्रोविजनल असेसमेंट की बात करूं तो ये टेम्पररी असेसमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड टेम्पररी असेसमेंट। टेम्पररी असेसमेंट। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल, जैसे हम बात करते हैं स्क्रूटनी की जाती है, इसकी बात की गई। यहाँ पर मैं नॉन फाइलर और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दोनों को इकट्ठा जोड़कर लिखूंगा। दिस इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। यहां पर मैंने शब्द लिखा है बेस्ट जजमेंट। और समरी असेसमेंट आप सबको पता ही है, अभी ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर। ये मैं आपके साथ अभी लेटर ऑन स्टेजेस पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर साथ साथ हमारे को कुछ रूल्स भी दिए गए हैं। रूल्स, सबसे पहले रूल दिया गया है यहाँ पर रूल 98। यहाँ रूल 98 दिया गया है। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के अंदर हमें रेफर करना होता है साथ में रूल 99। रूल 99। तो यहाँ पर हम अगर कोरिलेट करें सेक्शंस को तो वी हैव, अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पे फिर से, वी हैव टोटली 6 टाइप ऑफ असेसमेंट्स। वन इज अ सेल्फ असेसमेंट, मैं फिर से आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। अदर इज अ प्रोविजनल असेसमेंट, देन वी हैव स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, देन वी हैव नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स, देन वी हैव अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो असेसमेंट है, देन वी हैव समरी असेसमेंट, देन वी हैव समरी असेसमेंट्स। तो ये 6 किस्म की असेसमेंट्स जीएसटी में बात कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, नॉन फाइलर और अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो असेसमेंट्स हैं और कैपेबिलिटीज में। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोरिलेट करते हैं चीजों को। बिफोर एक्चुअली रीडिंग और स्टडीइंग इन जीएसटी,
related to assessment procedure or proceedings. दो सेक्शन का, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का। ये एक ओशंस हैं, दे आर द ओशंस वेयर ऑल द रिवर्स गेट मर्ज्ड। यानी कि हमेशा मैं यही कहता आया हूं कि चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे आपकी डिपार्टमेंटल ऑडिट हो, या आपकी कोई सर्च एंड सीजर हो, या असेसमेंट हो, एवरीथिंग सेक्शन 74। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों में देखना होता है, टाइम बारिंग भी होती है। टाइम बारिंग को भी पढ़ना है हमें कि टाइम बारिंग तो नहीं हो रही कोई चीज की। हमें ये भी पढ़ना है कि क्या उसमें हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि so that all lead 74 independently। coming back section 73 या 74 की बात करता हूँ सर, कोई भी चैट बॉक्स में बताना चाहेगा what is the difference between the both of the section 73 and 74? what is the difference between both of the sections? can you help me in the chat box please? what is the difference between 73 and 74? क्यों सर? इसको जल्दी से हमें ब्रीफ अप लेना पड़ेगा, नहीं तो हम असेसमेंट्स को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे सर। So we have to correlate the assessments. For that we need that purpose. Okay. हिमांशु जी कहते हैं 74 for the fraud and 73 for the non-fraud. Okay, okay. अंगद जी कह रहे हैं honest और fraud. 74 किशोर जी कह रहे हैं is for the fraud. I totally understand, but let me first remove this line and make the common points for you first. Very good, विजय कुमार जी. Thank you. देखिए सर, सेक्शन 73 एंड 74 इनिशियली एंड सिंस टिल देन, आज तक अगर हम बात करें तो हैव 5 केसेस। अब आप मेरी बात समझना सर, हम जितनी भी असेसमेंट आज पढ़ लें, हम जितनी भी असेसमेंट्स को आज अंडरस्टैंड और इवैल्यूएट कर लें, डीपली अंडरस्टैंड करके एनालिसिस बना लें, हाउएवर सारे सर्कमस्टेंसेस ये 5 के 5 नदियों में, ये 5 ओशंस में ही जाके फिट इन हो सकते हैं। कोई भी डिस्कशन हो that has to land in these 5 of the categories. One is tax not paid, then it is tax short paid, erroneous refund, ITC wrongly availed, or ITC wrongly utilized. So all the categories have to land up in any of the 5 categories. Broad category 5 है, इन 5 में से किसी एक में रहेगा कोई ना कोई। One is tax not paid, short paid, erroneous refund, ITC wrongly availed और ITC wrongly utilized। बस और बस 73 और 74 में एक छोटा सा फर्क है, वो है इंटेंशन का। इंटेंशन का, अगर आपकी इंटेंशन हुई नॉन फ्रॉडुलेंट यानी कि ऑनेस्ट असेसी, जो कि सबने चैट बॉक्स में लिखा, तो केस गोज अंडर सेक्शन 73। अगर आपकी हुई टू डिफ्रॉड या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन हुई तो केस फॉल करेगा सेक्शन 74। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर पांचों सर्कमस्टेंस तो सेम है, लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की बात भी की गई है। सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की बात भी की गई है। जब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं तो 73-74 के अंदर एक इंपॉर्टेंट और चीज आती है सामने। अब तक तो मैंने आपसे बात करी फंडामेंटल एनालिसिस की। चलिए फंडामेंटल एनालिसिस में मुझे एक चीज का अंतर बता दीजिए। यहाँ पर टैक्स नॉट पेड लिखा है, शॉर्ट पेड लिखा है, एरोनियस रिफंड लिखा है, रॉन्गली अवेल्ड लिखा है और रॉन्गली यूटिलाइज्ड लिखा है। कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड? बिल्कुल 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 विजय कुमार जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड? मैं आपसे सिर्फ डिफरेंस पूछ रहा हूँ सर इन दो शब्दों का, अवेल्ड यूटिलाइज्ड। रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड 100% अंगद जी बिल्कुल ठीक। यूटिलाइज्ड का मतलब तो आपने बता दिया सर, अवेल्ड का मतलब क्या होता है?
ओके इसको थोड़ा सा मैं इसलिए डीप में पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब हम स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स करते हैं तो मेनी टाइम्स वी रिसीव द नोटिस रिगार्डिंग, हमारे पास ASMT 10 आता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का, वो उसमें कहते हैं कि आपकी रॉन्गली अवेल्ड है, कहीं वो कहते हैं रॉन्गली यूटिलाइज्ड है। ओके सर, मैं आपसे अगर लीगल टर्म्स में बात करूं तो ITC अवेल्ड और ITC यूटिलाइज्ड में क्या फर्क है? ओके राघवेंद्र जी कह रहे हैं अवेल्ड एंड क्लेम्ड विदाउट इट्स यूटिलाइजेशन। सर ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। अवेल्ड को अगर मैं बोलूं तो इट मींस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में द अमाउंट इज क्रेडिटेड। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपकी अमाउंट जब क्रेडिट हो जाती है, ओके विजय कुमार जी, मैं ये केस ले लूंगा, बट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर अमाउंट को क्रेडिट किया जाता है तो इट इज मीनिंग टू हैव यू हैव अवेल्ड द क्रेडिट। व्हेन आई से इट इज यूटिलाइज्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट अगर घट जाती है यानी कि डेबिट कर दिया जाता है तो इट मीन्स इट इज यूटिलाइज्ड। लेट अस बी स्पेसिफिक। व्हेन आई टॉक अबाउट अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, अगर क्रेडिट लेजर में डाल दी गई है अमाउंट और उससे क्रेडिट लेजर बढ़ गया है तो इट इज अबाउट अवेलमेंट, एंड इफ इट इज डेबिटेड आफ्टर दिस प्रोसेस यहाँ पर तो ये यूटिलाइज माना जाता है। इज इट क्लियर सर यहाँ तक अवेल्ड और यूटिलाइज का गैप? नेक्स्ट कोई सर किसी को कोई डाउट है साथ साथ चैट बॉक्स में भी लिखते रहेंगे so that we have the proper discussions. Yes, so when I talk about section 73, यहाँ पर हमारे लिए एक अंडरस्टैंडेबल फैक्ट ये होता है कि 73 का मैक्सिमम शो कॉज नोटिस का समय कितना होता है। सर क्यों असेसमेंट्स में हमें 73 74 समझना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये नहीं समझाया तो आपको टाइम बारिंग्स या आपको अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं समझ आएंगे। दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट कीप ऑन नोटिंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू फाइंड दैट आर रेलेवेंट फॉर योर रेफरेंस पर्पसेस। When I talk about show cause notice, यहाँ पर टाइम होता है मैक्सिमम शो कॉज नोटिस आने का 2 year 9 months, whereas in section 74 the time is 4 years 6 months। 2 year 9 months 4 years 6 months तक का टाइम पीरियड होता है आपका शो कॉज नोटिस आने का। आपका शो कॉज नोटिस आने का समय मैक्सिमम यहाँ पर ये होता है। सर ये समय शुरू कब से होता है? When does this time period actually starts? ये कैलकुलेशन कहाँ से करनी होती है? This you have to calculate। बताइए सर चैट बॉक्स में, आप बताइए कोई प्लीज अगर ट्रायल करेंगे। See, if we have an interactive seminar, it will always lead to better discussions and better understanding. However, अगर आप सर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो क्या होगा? It will be a one-sided communication. Okay. Yes. हिमांशु जी, अंगद जी, ठीक है, विजय कुमार जी। सर यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। सेम चीज यहाँ भी लिखी हुई है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, नॉट फ्रॉम द एक्चुअल फाइलिंग डेट, बट इट इज एक्चुअली फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जब आपकी ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की आई, उससे 2 साल 9 महीने या उससे 4 साल 6 महीने आपको देखने होंगे, उससे 4 साल 6 महीने आपको देखने होंगे। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर, फाइनल प्रोसीडिंग्स कब कंप्लीट करनी है आपको? सर फाइनल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी है 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। सिमिलरली यहाँ पर क्या है? 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। इज इट क्लियर सर? यानी कि अगर हम कंक्लूसिव में बात करें तो कंक्लूसिवली हमारे को यहाँ पर 73 में मिलते हैं 3 months मिनिमम पीरियड टू शो कॉज नोटिस से फाइनल ऑर्डर तक के लिए, और यहाँ मिलते हैं मिनिमम 6 months
for the completion of the proceedings. 6 months for the completion of the proceedings. I believe कोई डाउट तो नहीं है किसी को सर यहाँ पर अभी तक? ठीक है, अगर आएंगे सर साइड बाय साइड लिखते जाएंगे। अगर हम बात करें यस विजय कुमार जी बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगेन एक और चीज हुई यहाँ पर, मिनिमम पेनल्टीज। मिनिमम पेनल्टीज, मिनिमम पेनल्टी। सर बोरिंग तो नहीं चल रहा? प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहें, यू आर एंजॉयिंग द सेशन। बिल्कुल, थैंक यू। नहीं, गुड गुड भाई साहब, बिल्कुल ठीक चल रहा है। चलिए, चैट बॉक्स रिफ्रेश कर दिया मैंने, अगर कोई लिख रहे हैं तो साथ साथ लिखते जाएं। सर यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम पेनल्टीज की बात की जाती है सेक्शन 73 में और 74 में। सर सेक्शन 73 में कितनी पेनल्टीज लगेंगी ये जरा ध्यान से नोट करेंगे। सर सेक्शन 73 के अंदर, थैंक यू सर, थैंक यू राघेंद्र जी, थैंक यू राजेश अग्रवाल जी। देखिए यहाँ पर 73 में बिफोर शो कॉज नोटिस, अगर आप शो कॉज नोटिस आने से पहले, इफ बिफोर शो कॉज नोटिस आप अपनी डिमांड जमा कर देते हैं, आपको लगा यार मुझे 73 का नोटिस तो नहीं आ जाएगा, आपको डर लगने लगा। सर अगर आप बिफोर शो कॉज नोटिस वॉलंटरी पेमेंट कर देते हैं अंडर DRC 03, अगर आप वॉलंटरी पेमेंट कर देते हैं अंडर DRC 03 तो क्या होगा? आपका टैक्स तो जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा, लेकिन पेनल्टी हो जाएगी कितनी? इंटरेस्ट भी जाएगा लेकिन पेनल्टी हो जाती है इस केस में 0। सो यू डोंट हैव एनी पेनल्टी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अगर आप शो कॉज नोटिस आने के 30 दिन तक भी सर, आई एम टॉकिंग अबाउट विजय कुमार जी, आई एम टॉकिंग अबाउट 73 सेक्शन। अगर आप 30 डेज तक भी जमा कर देते हो, टैक्स जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा, पेनल्टी जाएगी, अगेन 0, अगेन 0। अगर 30 डेज का समय निकल गया तो आपके टैक्स जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा और पेनल्टी जाएगी कितनी? 10% ऑफ टैक्स और 10,000 रुपीज, whichever is higher। 10% of tax or 10,000 rupees, whichever is higher। Is it clear? यहाँ तक बिल्कुल ठीक है सर। Whereas when I talk about section 74, 74 has a different variety। 74 has a different variety। For section 74, अगर आप शो कॉज नोटिस आने से पहले, अगर आप शो कॉज नोटिस आने से पहले कुछ भी पैसा जमा कर देते हो, जो पैसा जमा करते हो आपको लगा मुझे यार फ्रॉड का केस है और कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है कि नोटिस आने वाला है यार 74 का, ठीक है, या वो एक लेटर से कम्युनिकेट करते हैं, आपको बताते हैं जी हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई, आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जाएगा आपका टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी इक्वल टू 15% ऑफ टैक्स अमाउंट। लिख देता हूँ 15% ऑफ टैक्स। शो कॉज नोटिस आने के 30 दिन तक, 30 डेज, शो कॉज नोटिस आने के 30 डेज तक अगर आप करते हो तो टैक्स नो होंगे सर, ये 15% तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा इस वाले केस में, ठीक है। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी इक्वल टू 25% ऑफ टैक्स, पेनल्टी इक्वल टू 25% ऑफ टैक्स। 30 दिन का समय निकल गया, कोई बात नहीं, अगर ऑर्डर पास हो जाता है फिर आप वेट करो ऑर्डर पास होने की। ऑर्डर आने के भी अगर आप 30 डेज तक जमा कर देते हो तो लगेगा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी इक्वल टू, पेनल्टी कितनी लगेगी सर यहाँ पर? 50%, सॉरी 25 लिख दिया, 50% ऑफ टैक्स।
और अगर 30 दिन का समय भी निकल गया ऑर्डर पास होने का, तो आपका लगेगा क्या, टैक्स और पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स। यहाँ पर कितनी पेनल्टी? दिस इज व्हाट इज द ब्रीफ ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 को लेकर। 73 74 को लेकर किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ये सबने नोट कर लिया? सर मैं आगे बढ़ जाऊं तो 73 74 is the ultimate sections of demand. Now let us understand the process further. Let us say there is a demand under section 73 or 74. Let us understand there is a demand under section 73 or 74. ठीक है, थैंक यू विजय कुमार जी। आपकी डिमांड आई, ये डिमांड रही अनपेड, ये डिमांड रही अनपेड, अनपेड फॉर 3 months। अगर ये डिमांड आपकी अनपेड रहती है फॉर 3 months, then it moves to the, then the clause moves to the recovery proceedings। तब रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, और रिकवरी के प्रोसीडिंग में दे कैन आइदर वो ऑक्शन कर सकते हैं, वो गार्निशी ऑर्डर दे सकते हैं, यानी कि वो कहें कि भैया मेरे को पेमेंट मत करना, मतलब इसकी पेमेंट आप इसको डायरेक्ट मत करना, मुझे कर देना, ठीक है। और आइदर अटैचिंग दी बैंक अकाउंट्स और एसेट्स, अटैचिंग ऑफ एसेट्स। सुनील जी लिमिट कौन सी पूछ रहे हैं? लिमिट ऑन इंटरेस्ट? नो सर, इट इज 18%। 18% वही पर एनम के हिसाब से टैक्स रेट जो इंटरेस्ट रेट लगता है वही लगता रहेगा और कुछ नहीं। मैं इसलिए पूरा प्रोसेस लिंकअप कर रहा हूँ, जैसे ही मैं आप असेसमेंट के सेक्शन खोलूंगा तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अब हमारे को समझ आ रहा है कि हमारे साथ लास्टली क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप कभी भी डिमांड या ऑर्डर सेक्शन 73 और 74 का फाइनल हो जाता है, आपका सेक्शन 73 और 74 का ऑर्डर फाइनल हो जाता है, तो यू हैव योर ऑप्शन एज फर्स्ट अपील्स। आप पहले फर्स्ट अपील्स में जाते हैं। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, बट मैं फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ खाली, सो दैट आपको ये पता हो कि अल्टीमेटली रिकोर्स क्या अवेलेबल हैं असेसमेंट्स के, अगर हम फाइनल कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं तो, ठीक है। आपकी पहले तो होती है सर फर्स्ट अपील्स। फर्स्ट अपील इज अ डिपार्टमेंटल अपील। यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट के अंदर अपील होती है, एक प्रोसेस होता है। उसके बाद फर्स्ट अपील के बाद वी मूव टू दी सेकंड अपील्स। For case of second appeals, if I talk about second appeals, इसको बोला GST Appellate Tribunal. GST Appellate Tribunal. So to be very precise, this has not yet constituted. तो ये हमारे लिए एक disadvantageous position बन जाती है। This is not yet constituted, and if I say it is not yet constituted means आवाज ठीक आ रही है? किशोर सर ने लिखा हुआ है आवाज प्रॉब्लम है कुछ। आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ऑल? चलिए सर, सेक्शन 74 के अंदर यस, अब वॉइस आ रही होगी सर, बिल्कुल ठीक है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्शन 73 के जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल में हम जाते हैं, तो एपलेट ट्रिब्यूनल अभी कंस्टिट्यूट नहीं हुआ, एंड सिंस एपलेट ट्रिब्यूनल इज नॉट येट कॉन्स्टिट्यूटेड, वी डू नॉट हैव एनी रिकोर्स फॉर द फर्स्ट अपील, do not have any recourse available for the first appeal, and if there is no recourse, this matter goes on बैक डेट तक ऐसे ही चलता रहेगा, और फिर इसकी सीक्वेंस पिक की जाएगी, एंड इट अराउंड माय एस्टिमेशन से इट विल टेक 2 or 3 years to get compiled and cleared for the appellate tribunal once it is constituted. So appellate tribunal अभी बना नहीं है, तो हाई कोर्ट से जाके सारे मैटर्स स्टे में जाते हैं. So this is the whole process of appeals
और डिमांड्स और रिकवरीज ऑफ जीएसटी। मैं अभी डेप्थ में नहीं गया किसकी टाइमलाइंस क्या है और कहाँ तक कितने टाइम में आपको अपील फाइल करनी होती है। सो बिकॉज दैट विल टेक अनदर session to compile. However, this is the total framework. Now let's jump to the assessments back. हम assessments की बात कर रहे थे और assessments हमारे पास कितने किस्म की थी? हमारे पास assessments की total 6 types of assessments. One is a self-assessment, provisional scrutiny, unregistered non-filers, and summary assessments. Briefly, let's come to very important assessment called self-assessment. Self-assessment. सर सेल्फ असेसमेंट इज लाइंग अंडर सेक्शन 59 और सेल्फ असेसमेंट में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, प्लीज नोट द पॉइंट, इट इज सेइंग एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, यानी कि उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, शैल असेस, वो असेस करेगा अपनी लायबिलिटी एंड फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 39 के अंदर लिखी हुई है जीएसटीआर 3B, 39 के अंदर लिखी हुई है जीएसटीआर 3B। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इस बजट के अंदर जो इस साल बजट आया था एक अमेंडमेंट आई थी, एक अमेंडमेंट आई और उस अमेंडमेंट में क्लियरली क्या बोला गया, सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूड्स, विजय कुमार जी क्वेश्चन क्या है, रजिस्टर्ड टैक्स विल कम अंडर सेल्फ असेसमेंट, यस 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 विजय कुमार जी। तो इस बजट के अंदर एक चीज प्रपोज की गई थी कि सेल्फ असेसमेंट आल्सो इंक्लूड्स टैक्सेस डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 1। मेरा शुरू से आपसे एक क्वेश्चन ये रहा कि क्या कोई चीज अगर जीएसटीआर 1 में डाल दी गई है और 3B में नहीं डाली गई, इज इट कंसीडर्ड एज सेल्फ असेस्ड? क्या ये सेल्फ असेस्ड मानूं? क्या किसी चीज का मैंने ई-वे बिल बना दिया, जीएसटीआर 1 में भी डाल दिया और 3B में नहीं डाला, इज इट कंसीडर्ड एज सेल्फ असेस्ड? मुझे आपका जवाब चाहिए यस और नो, प्लीज अपना जवाब दीजिए यस और नो, ठीक है ओके ठीक है। सो सर सब कह रहे हैं कि हम तो मानेंगे कि ये भी सेल्फ असेस्ड ही है ना भैया, हम तो ये भी मानेंगे कि ये भी सेल्फ असेस्ड ही है, ओके सर हम इसको जरूर नहीं, विजय कुमार जी कह रहे हैं नहीं सेल्फ असेस्ड नहीं मानूंगा, किशोर शाह जी कह रहे हैं नहीं मैं इसको सेल्फ असेस्ड नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं सर, सबके अपने अपने डिफरेंट व्यूज हैं रिगार्डिंग दिस सेम थिंग। व्हेन आई टॉक अबाउट सेल्फ असेसमेंट तो आपके मन में अलग अलग सवाल उठ के आते हैं कि क्या भाई ये सेल्फ असेसमेंट मानूं या ना मानूं। यहाँ पर सबसे क्लियर बात ये है, सेल्फ असेस मींस जो उसने असेस करके रिपोर्ट किया हो। इन माय पर्सनल ओपिनियन आई वांट टू से, अगर उसने कहीं पर भी 1 में यहाँ डाल दिया सर, वो सेल्फ असेसमेंट में नहीं जाएगा, वो सेक्शन 61 में चला जाएगा, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में। यानी कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में क्लियरली लिखा हुआ है रिटर्न एंड इट्स रिलेटेड पर्टिकुलर्स, रिटर्न एंड इट्स रिलेटेड पर्टिकुलर्स। तो रिटर्न और उसके रिलेटेड पर्टिकुलर्स हैं ये ई-वे बिल और जीएसटीआर 1, बट इन माय पर्सनल व्यू दिस विल नॉट फॉल अंडर सेल्फ असेसमेंट, दिस विल रादर फॉल अंडर which case under scrutiny of returns. Is it clear sir? Is it clear? Yes. चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर अब मेरे को आपको एक सेल्फ असेसमेंट में एक सर्कुलर लिखवाना है, वो सर्कुलर लिख लीजिए, सर्कुलर नंबर 26/2017 26/2017, it is dated 29th December 2017. The circular is very important and it makes us feel happy about it because the circular addressed many issues related to amendments, related to wrong mistakes, related to errors, related to clerical mistakes in the return. ये कहता है where there is no separate table, मैं इसके लिए इसका एक relevant extract बोलना चाहूंगा पैरा 4 का, पैरा नंबर 4 का, ये क्लियरली कहता है that in case there is no separate table for reflecting the affected amendments, the figure pertaining to the current month can be adjusted for the past amendments so long as the amount is not negative.
मतलब आपके अगर लेट से 3B के अंदर 10 लाख रुपए की टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा चढ़ गई है, आप नेक्स्ट वाली के अंदर टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख रुपए कम चढ़ा देना, आप 10 लाख रुपए कम चढ़ा देना। दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर नंबर 26/2017। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एन एक्सटेंड कि आपको ये फ्यूचर टैक्स पीरियड की कोई लिमिटेशन नहीं देता। इट नोवेयर डिफाइंस एनी लिमिटेशन दैट टिल व्हाट एक्सटेंट एंड टिल व्हाट टाइम these adjustments can be made, but these adjustments can be made certainly till the period you identify such problems, and you can make such amendments till the time it is corrected and it is not negative. It is corrected and not negative. Is it clear, sir? यहाँ तक self assessment is merely this much. अब अगर हम बात करें सेल्फ असेसमेंट के साथ साथ, तो हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि सेल्फ असेसमेंट अगर हम, मैं सेक्शन कुछ रिटर्न्स लिखवा देता हूं, अगर हम रेगुलर टैक्स पेयर की बात करें तो सेल्फ असेसमेंट की बात होती है GSTR 3B में। अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन डीलर की तो उसकी सेल्फ असेसमेंट होती है किसमें? GSTR 4 में। उसकी सेल्फ असेसमेंट किसमें होती है? GSTR 4 में। अगर हम बात करें नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की, उसकी सेल्फ असेसमेंट होती है GSTR 5 में। अगर हम बात करें लेट से OIDAR की, उसकी असेसमेंट होती है 5A में, GSTR 5A में। अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तो उसकी सेल्फ असेसमेंट होती है GSTR 6 में। अगर हम बात करें TDS अंडर सेक्शन 51, इसकी सेल्फ असेसमेंट होती है GSTR 7 में। अगर हम बात करें TCS अंडर सेक्शन 52 की, इसकी सेल्फ असेसमेंट होती है GSTR 8 में। और अगर कोई UIN वाला पर्सन है, सेल्फ असेसमेंट होती है GSTR 11 में। ये है पूरा सेल्फ असेसमेंट का चार्ट कि सेल्फ असेसमेंट कहाँ से देखी जाती है, किस चीज को रेफर किया जाता है, और सेल्फ असेसमेंट में किस एक्सटेंट तक आपको अलाउ किया जाता है, आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस सर्कुलर 26/2017, which I find very important to all my problems and worries which I find in GST when returns are wrongly filed or something is missed or something is excessively reported. तो आप अनइनवाइटेडली यहाँ पर सेक्शन 73 और 74 इम्पोज ना कराएं। अब मैं कहता हूँ सेल्फ असेसमेंट की कोई टाइम बारिंग है? सेल्फ असेसमेंट इज नॉट हैविंग एनी टाइम बारिंग। और सेल्फ असेसमेंट से कोई डिमांड नहीं निकल रही है, सेल्फ असेसमेंट से कोई डिमांड नहीं निकल रही है, ओनली इट इज सेइंग कि ये चीज उसने सेल्फ असेस करनी, यानी कि मूविंग फर्दर प्रोविजनल क्यों होती होगी, why the provisional assessment concept is there, practically लगेगी। why provisional assessment is there, provisional assessment क्यों होती होगी लॉ के अंदर? प्लीज कोई चैट बॉक्स में बताएगा सर, why there is provisional assessment in law, what is the purpose of provisional assessment, why do we provisionally get assessed something? सर आई होप आई एम ऑडिबल, प्लीज आप चैट बॉक्स में इंटरेक्ट करते रहें। ओके विजय कुमार जी कह रहे हैं रेट ऑफ टैक्स, गंगा जी कह रहे हैं ओके क्लासिफिकेशन ना क्लियर हो, यानी कि एक चीज तो पता लग गई कि रेट ऑफ टैक्स अगर ना पता चल रहा हो तो आप प्रोविजनल असेसमेंट में जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उसमें, अगर आप वैल्यू भी डिटरमिन नहीं कर पा रहे, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस भी नहीं डिटरमिन कर पा रहे, तो भी आप प्रोविजनल के अंदर जा सकते हैं। विजय कुमार सर रेट आइडेंटिफिकेशन ही मैंने HSN क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया, ठीक है, रेट आइडेंटिफिकेशन के अंदर ही पार्ट हो गया ये क्लासिफिकेशन वाला भी, ठीक है। तो इफ टैक्स पेयर यहाँ पर क्या करता है, प्रोविजनली अप्लाई कर देता है कि भैया मेरी प्रोविजनल असेसमेंट कर दो, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया जाता, क्यों, अभी उस पर भी आऊंगा, अभी उस पर भी आएंगे कि इसको प्रैक्टिकली क्यों नहीं लगा जाता। यहाँ पर
he may request the proper officer. सर ये may request है, आप चाहो तो रिक्वेस्ट करो, नहीं चाहो तो मत रिक्वेस्ट करो। आप प्रोविजनल बेसिस पे करो कि भाई हम प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स देना चाहते हैं, हमें लगता है कि हमारा टैक्स होना चाहिए 12 और आपको लगता है 18, प्रोविजनली पे कर दो। और ये ऑफिसर इस एप्लीकेशन के 90 दिन के अंदर अंदर 90 डेज के अंदर अंदर he has to pass a provisional order. He has to pass a provisional order. ये जब प्रोविजनल ऑर्डर पास कर देगा, he will pass the provisional राहुल order. जी, अश्विनी सहगल को बेटा 3 साल की सिर्फ ITR की कॉपी दे दियो बस, कंपटीशन ना चाहिए। मैं व्हाट्सएप कर दिया तो राजेश सर, सॉरी सर। हाँ जी सर। सर प्रोविजनल ऑर्डर 90 दिन के अंदर पास हो जाएगा, प्रोविजनल ऑर्डर 90 दिन के अंदर पास हो जाएगा। सो व्हेन आई से 90 डेज के अंदर, तो उसको पेमेंट भी अलाउ करनी होगी प्रोविजनल बेसिस पे। यस बिल्कुल सर, यही लिख रहा हूँ 90 डेज। सर लॉ में 90 डेज लिखा है तो मैं 90 डेज बोलता हूँ, जहाँ मंथ लिखा है वहाँ मंथ बोलता हूँ। ये भी एक कंफ्यूजन होती है सर। राजेश जी मैं आपको एक बात बता दूं, विजय कुमार जी आपको पता होगा तो इस ऑफिसर रिटायर्ड, और विजय कुमार जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नहीं सर, विजय जी को फिर मैं उसमें ले लेता हूँ ना, पैनलिस्ट में। हाँ जी तो सर मेरे को ध्यान नहीं था भाई साहब, सॉरी। विजय कुमार नेमानी जी, सुब्रमण्यम जी। सुब्रमण्यम जी, वेलकम सर, ज्वाइन एज ए पैनलिस्ट सर। विजय कुमार जी वेलकम, एंड आई एम हाईली where I am taking the session, and sir that you take out your precious time. Coming back to the topic sir, and provisional order पास हो जाता है 90 दिन के अंदर। उसमें क्या होता है सर, एक यहाँ within a period not exceeding 6 months from the communication of this order, यानी कि मैक्सिमम 6 मंथ्स तक एक फाइनल ऑर्डर भी पास करना होता है, एक फाइनल ऑर्डर भी पास करना होता है। और अभी मैं प्रैक्टिकल एनोमली पे जाऊंगा कि इसको क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सो विद इन 6 मंथ्स he has to communicate a final order जिसमें ये बताना होगा कि उसने क्या असेसमेंट करी, प्रोवाइडेड ये पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है, ये पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, 6 months by the, ठीक है। एंड कमिश्नर इसको एक्सटेंड कर सकता है, ध्यान से देखिए, कमिश्नर इसको एक्सटेंड कर सकता है टिल 4 years, टिल। सबसे बड़ी एनोमली तो मुझे ये लगी कि सर ये 4 साल और ये 6, इस वजह से लोग प्रोविजनल असेसमेंट में नहीं जा पा रहे होंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, अभी मैं और भी चीज बताऊंगा, यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, प्रोविजनल असेसमेंट में मैंने आपसे बोला लेट्स से, और ये चीज प्रैक्टिकली असेस करना और तभी प्रोविजनल असेसमेंट में जाना सर, प्रैक्टिकली असेस करके ही प्रोविजनल असेसमेंट में जाना है। सर लेट से आपको लगता है हमारी वैल्यू होनी चाहिए 10,000, डिपार्टमेंट कहता है नहीं हमारे को लगता है आपकी वैल्यू होनी चाहिए 15,000। ठीक है किशोर जी, अब आ रही होगी बस, मैंने ईयरफोन्स ठीक लगा दिए फिर। ओके, सो प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट कहता है नहीं जी, हटा जी आपकी वैल्यू होनी चाहिए 15,000, आपको लगता है नहीं हमारी वैल्यूएशन की जानी चाहिए 10,000 रुपए पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं प्रोविजनल असेसमेंट में, आप कहते हैं चलो जी प्रोविजनल असेसमेंट करा लेते हैं। अभी मैं 10,000 बोलता हूँ, नहीं तो हायर साइड पे 15,000 बोलता हूँ। अगर आपकी प्रोविजनल असेसमेंट हुई लोअर साइड पे या हायर साइड पे, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो प्रोविजनल असेसमेंट होगी लोअर साइड पे या हायर साइड पे। यानी कि अगर प्रोविजनल असेसमेंट हुई लोअर साइड पे तो फाइनल असेसमेंट हो सकती है दो तरीके से, या तो इसको 10,000 ही माना जाएगा, ये फाइनल असेसमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी
अगर उसका 15,000 रुपये, उसका क्या आ जाए 15 रुपये बाद में फाइनल असेसमेंट के टाइम पे। सिमिलर हो सकता है बाद में 10,000 रुपये पे आ जाए या 15,000 पे ही कंटिन्यू कर ली जाए, या 15,000 पे ही कंटिन्यू कर ली जाए। आप ध्यान से देखिए, अगर ये 10,000 की 10,000 पे ही कम्युनिकेट कर दी गई तो कोई बात नहीं, देन देयर इज नो एक्शन। आपने 10 बोला था, 10 ही जमा हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, देयर इज नो डिफिकल्टी इन एज सच। यहाँ पर 15 आपने 10 बोला लेकिन 15 हो गए, तो यहाँ पर टैक्स और इंटरेस्ट, टैक्स भी जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा और इंटरेस्ट भी जमा करना पड़ेगा। 15,000 10,000 कर दिए, अगर ये 15,000 10,000 बाद में निकला, आज प्रोविजनल असेसमेंट पे हुई, सुनील जी कह रहे हैं सर ITC of IGST claimed wrongly instead of CGST and SGST, whether any remedy now through circular 26 as referred by you, annual return is still not fair। तो ये इस केस में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने IGST का क्रेडिट रॉन्गली क्लेम करा है CGST SGST में, और यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, आपने ये क्रेडिट अवेल गलत किया है। सो अब अवेल करने का समय तो निकल गया ना। हाँ, इसका रिवर्सल कर सकता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें एक रेवेन्यू न्यूट्रलिटी निकाल सकते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है कि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी निकाली जाए। अगर हम ये बोलें कि जी लेट से आपने रेवेन्यू न्यूट्रल है, अगर मैंने क्रेडिट सही भी लिया होता तो मेरी लायबिलिटी SGST में ही बनती, ये प्ली ली जा सकती है, बट दैट इज टोटली लिटिगेटिव। However, circular 26/2017 is not protecting in this case where there time barring, जिसका टाइम लैप्स हो चुका हो। ठीक है सुनील जी, अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पर। आपकी 15,000 रुपये प्रोविजनल असेसमेंट हुई, बाद में ये 10,000 रुपये घट के आ गए। ठीक है, अगर ये बाद में घट के आ गई तो यहाँ पर आपको ये पैसा 5,000 रुपये रिफंड मिल जाएगा, रिफंड पे मिल जाएगा, और अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 56, यानी कि वो 6% वाला इंटरेस्ट जो होता है वो भी मिल जाएगा, टोटली डिपेंडिंग अगर ये आपका रिफंड बना तो। हाउएवर अगर 15,000 पे ही बाद में असेस हुआ तो देयर इज नो एक्शन दैट इज डिजायर्ड, देयर इज नो एक्शन दैट इज डिजायर्ड, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस केस। इज इट क्लियर सर प्रोविजनल असेसमेंट? अब मुझे क्या लगता है सर, प्रोविजनल असेसमेंट में क्यों नहीं लोग जा पाते? सर प्रोविजनल असेसमेंट में क्यों नहीं लोग जा पाते? लेट अस अंडरस्टैंड दिस आल्सो। सर आई फाइंड एनोमली टू प्लेसेस, वन अबाउट दिस एक्सटेंशंस, वन अबाउट दीज एक्सटेंशंस, ये जो एक्सटेंड करके पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा, दिस विल क्रिएट अ हिंड्रेंस एंड डिफिकल्टी टू अस एज अ प्रोफेशनल आल्सो एंड टू द असेसी फॉर द रिसिपिएंट और द सप्लायर। आप सोचिए टाइम पीरियड एक्सटेंड करके कितने महीनों की लायबिलिटी बनती है, जमा करा दें, तो एक वो डिफिकल्टी हो सकती है, और सामने वाले के इनपुट टैक्स क्रेडिट इस वजह से पूरे के पूरे डार्क में चले जाएंगे, उसको इनपुट भी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप जब नेक्स्ट बिल काटोगे, लेट से ये बाद में 15,000 निकला, पहले कम वैल्यू किया गया प्रोविजनली और बाद में ज्यादा पे कर दिया गया, तो कितनी डिफिकल्टी होगी सर? डिफिकल्टी इस वजह से होगी कि भाई यहाँ पर तो 10 था, बाद में 15 हो गया, और ये लेट से बाद में हुआ और तब तक टाइम पीरियड निकल गया सितंबर का, सॉरी यहाँ पर 4 साल तक, अगर मैं कहूँ अगले साल सितंबर का पीरियड निकल चुका होगा, सामने वाले को इनपुट नहीं मिलेगा और ये 5,000 आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो आइदर वी नीड सर्टेन क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट इन दिस रिगार्ड कि भाई अगर प्रोविजनली असेस किया गया है लोअर साइड पे और फ्यूचर में प्रोविजनली असेस करके वो हायर साइड पे चला गया, तो रिसिपिएंट को भी तो इनपुट मिलना चाहिए, नहीं तो ये तो अपनी जेब से पे हो जाएगा एंड इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट। इट इज अल्टीमेटली नॉट गेटिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द रिसिपिएंट। Am I clear what is the anomaly? आपको anomaly समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Is it clear? Yes. नंबर लेते प्रोविजनली असेसमेंट डाल, आपको SMT 01 भरना होता है, 01 भरना होता है। अगर आपको लगता है कि ऑफिसर को लगता है कि कोई कमी है तो वही SMT 2 में से डॉक्यूमेंट्स मंगा लेता है, ठीक है, ASMT मंगा लेता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई इंफॉर्मेशन और मंगानी होती है फाइनल असेसमेंट में तो वो ASMT 06 में मंगा ली जाती है आपसे, ASMT 06 में मंगा ली जाती है। ASMT 4 में वो आपको प्रोविजनली पे करना अलाउ कर देता है,
और फाइनली आपका ASMT 7 के अंदर फाइनल ऑर्डर पास होता है। ASMT 7 में फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है। सो सर आपको क्या लगा कि प्रोविजनल असेसमेंट में जाना ठीक है या नहीं? Particularly when I find it can be a very useful tool where there are litigations that are coming up. हमें ऐसा लगता नहीं हमारा प्रोडक्ट 18 में होना चाहिए, डिपार्टमेंट कहता नहीं 28 में होना चाहिए। सो देयर कैन बी केसेस लाइक सच आल्सो, और ये चीज हम तब यूज कर सकते हैं पर्टिकुलरली इजीली हम इसको अप करके हम इसको टेकअप करेंगे अकॉर्डिंगली, और इस वजह से हमारे आज की रिफंड हो जाएगी। इज इट क्लियर सर? प्रोविजनल असेसमेंट सर, किसी का प्रोविजनल असेसमेंट पे कोई डाउट है क्या? इज देयर एनी डाउट ऑन प्रोविजनल असेसमेंट? नो। नेक्स्ट आता हूँ सर। सर यस नो लिखते रहेंगे सर चैट बॉक्स में, अदरवाइज सर मुझे ऐसा लगेगा सर कहीं सब सो तो नहीं गए, क्योंकि टॉपिक ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग रहा है, बट हाँ इट इज प्रैक्टिकल। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट शुरू करूंगा स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, अब आपको मजा आने लग जाएगा। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न इसमें स्क्रूटनीज आने लग गए हैं। ये ASMT 10 में आपको बताते हैं कि भाई आपके कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी मिल रही है उसको ठीक करो, आपके कहीं ना कहीं गलती मिल रही है रिटर्न में उसको ठीक किया जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, देयर इज रिटर्न एंड इट्स रिलेटेड पर्टिकुलर्स। मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा थोड़ा सा रेलेवेंट वर्ड्स। इट सेज जहां पर रिटर्न एंड इट्स रिलेटेड पर्टिकुलर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटेड पर्टिकुलर्स, फिनिश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए रिटर्न एंड इट्स रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई the correctness of returns, to verify the correctness of returns। यहाँ पर वेरीफाई क्या करना है उसको, करेक्टनेस ऑफ रिटर्न्स, क्या रिटर्न्स एंड इट्स रिलेटेड पर्टिकुलर्स हैं, और वो वहां पे उससे बताएगा कि क्या डिस्क्रिपेंसीज उसको मिली। अगर ध्यान से सुनिए, जो डिस्क्रिपेंसीज उसने इंटीमेट करी ASMT 10 के अंदर, अगर उसने कोई डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेट करी और उसका सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स विद इन 30 डेज ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड नहीं आता, तो इस केस में ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इस केस में स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में मैं एक एग्जांपल भी लेता हूँ आपका 3B वर्सेस 1, GSTR 3B वर्सेस 1। लेट से आपकी 1 में फिगर आ रही है 10 लाख रुपए की और 3B में आ रही है सिर्फ 6 लाख रुपए की। सो दिस इज रिटर्न एंड इट्स रिलेटेड पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आपको ASMT 10 का नोटिस आता है, शो कॉज नोटिस आता है कि भैया आपने 4 लाख रुपए की कोई एक्सप्लेनेशन दो कि 4 लाख रुपए पर टैक्स जमा नहीं किया, या क्या गड़बड़ी है कि आपने 1 ज्यादा फाइल किया और 3B कम की फाइल करी। तो 6 और 10 लाख में फर्क था, और 6 और 10 अंदर जब ये ASMT 10 आया, तो अगर आपने लेट से 30 डेज के अंदर कोई रिप्लाई नहीं किया या इसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया या इनका मैटर क्लोज नहीं किया ये वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको या तो सेक्शन 65, 66, 67 और 73 और 74 में जाने को बोल दिया जाएगा। यानी कि या तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी, या इंस्पेक्शन चालू हो जाएगी, या आपके ऊपर डिपार्टमेंटल ऑडिट शुरू करूं, या मैं 73, 74 के अंदर आपसे डिमांड निकालना शुरू करूं, या मैं आपसे 73 और 74 में डिमांड निकलवाऊंगा। अभी आप लोगों को मैंने पूरा 73, 74 का प्रोसेस इसलिए नोट डाउन करवाया था, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट आई वांटेड टू से, सेक्शन 61 में अगर आपको कोई नोटिस आया है कि भैया आपकी ना रिटर्न में डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, दैट डज नॉट मीन्स कि वो डिमांड आ गई है, दैट डज नॉट मीन कि डिमांड आ गई है। व्हाट आई वांट टू से, इट इज जस्ट एन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 61
इट हैज टू गो एज पर सेक्शन 73 एंड 74 आफ्टर दैट। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि डिमांड है तो ये डिमांड है, इट्स नॉट अ टोटल डिमांड हियर। यहाँ पर 73 74 के अंदर आपको फिर डिमांड प्रोसेस की जाएगी और फिर आपने अगर अपील करनी है आप अपील करो, वो 10% लगाकर फिर फाइनल फर्स्ट अपील में जाओ, और यहाँ पर आप फर्स्ट अपील में जाके अगर आप हार जाते हैं तो एपलेट ट्रिब्यूनल में जाओ, जो कि अभी स्टे पे है, मैंने जैसे पूरा प्रोसेस बताया था। ठीक है, ASMT 11 के अंदर आप इस ASMT 11 में आप इसका रिप्लाई करते हैं और ASMT 12 में इसका फाइनल क्लोजर होता है। ASMT को डिस्कस assessment, one is a provisional assessment, one is a scrutiny of returns। सर यहाँ तक किसी पे कोई डाउट है अगर तो वो बोल सकता है scrutiny of return। Next, do we need to reply in case there is a variance in पैसे? अंगद जी मैं उसमें यही बोलूंगा कि आप रिप्लाई जरूर करें ASMT 10 का, उसको अनरिप्लाइड ना छोड़ो, उसको अनरिप्लाइड ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि अगर आप छोड़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, they then go into more deep things। आप उसको रिप्लाई कर दीजिए, क्यों उनके रेड फ्लैग सिग्नल में बना रहना होता है, उनके रेड फ्लैग सिग्नल में मत बने। ठीक है, इज इट क्लियर? जी, यस, ओके। मूविंग फर्दर अब हमारे को यहाँ पर समझना है रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसी। सर मैं आपसे बोलता हूँ डिस्क्रिपेंसी इन रिटर्न्स, व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय डिस्क्रिपेंसी? आपने मेरे से स्क्रूटनी में पूछा कि मतलब discrepancy means variation which has a material impact, any variation which has a material impact, तो वो हम पर देखनी होगी। अगर आपका लेट से आपने 1 में डाला कम सेल, 3B में डाली ज्यादा, ये एक मटेरियल वेरिएंस है। आपने 3B में डाली कम, 1 में डाली ज्यादा, तो 2B के अंदर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आ रहा और ये 3B के अंदर आपने ले लिया, क्या ये भी इज अंडर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स? यस और नो? क्या ये भी अंडर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स फॉल करेगा? यस और नो? तरुण जी कह रहे हैं यस, तरुण सर कह रहे हैं यस, गंगा जी भी कह रहे हैं यस। ठीक है सर, मैं अगर इस लाइन को एक्चुअली में रीड करूं, विजय कुमार जी कह रहे हैं वेदर प्रोसीडिंग्स कैन, यस यस विजय कुमार जी, दे कैन बी इनिशिएटेड, दे कैन बी टोटली इनिशिएटेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दे कैन बी टोटली इनिशिएटेड अंडर दिस प्रोसेस। अब मेरा प्रोसेस में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मेरी बात समझेंगे। यहाँ पर सेक्शन 61 के अंदर इफ आई रीड इट बेयरली, इट सेज द प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटनाइज द रिटर्न्स एंड इट्स रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। सर, returns and its related particulars furnished by the registered person, क्या टू बी मैंने फर्निश किया है? टू बी मैंने फर्निश किया है? नहीं, इट इज एक्चुअली furnished by the another registered person or my supplier or a counterparty, so there still lacks a legal viewpoint। विजय कुमार जी मुझे बताइए मैंने सही बोला नहीं बोला? The proper officer may scrutinize the return and its related particulars furnished by the registered person। Sir, why are we then scrutinizing the discrepancies from a report furnished by the another person? It's not furnished by me. It's not furnished by me, rather it is furnished by the another registered person. So practically, if I talk about, this can create a litigative view and we can go for litigation under this process also। यहाँ पर litigation आ सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पर जब डिस्क्रिपेंसी और स्क्रूटनी की बात कर ली गई, अब हमारे पास आया ऐसा पर्सन जिसने रिटर्न नहीं फाइल करी। एक होता है रिटर्न ने फाइल करके उसमें गलती करना, एक होता है रिटर्न ने फाइल ही ना करना, एक होता है रिटर्न ने फाइल ही ना करना। ठीक है, एम आई ऑडिबल? यस।
एक होता है रिटर्न फाइल करना और फिर गलती निकालना, दैट फॉल्स अंडर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। एक होता है रिटर्न फाइल ही ना करना, दैट इज फॉलिंग अंडर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स, नॉन फाइलर्स। रजीश जी, आई एम ऑडिबल, प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए एम आई ऑडिबल और नॉट। ठीक है सर, आप रिप्लाई करते रहा करिए बीच में चैट बॉक्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आवाज पहुंच रही है सबको। सेक्शन 62, सेक्शन 62, ठीक है सर। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। तो ये नॉन फाइलर वो हैं जिसकी रिटर्न ड्यू हो जाती है और वो रिटर्न फाइल नहीं करता, जिसकी रिटर्न ड्यू हो जाती है और वो रिटर्न फाइल नहीं करता। सर यहाँ पर आपको ASMT 13 आता है, यहाँ पर आपको ASMT 13 आता है, और यहाँ पर 13 के अंदर आपको बोला जाता है कि आपके पास रिटर्न्स अपलोडेड नहीं है, रिटर्न्स अपलोडेड नहीं है। इसमें आपको एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है और DRC 07 में आपकी लाइबिलिटी भी साथ में निकाली जा सकती है। लेकिन इसको समझिए, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न होता कौन है। सर यहाँ पर लिखा है वेयर अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना होगा सर। रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखी है, जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखी है यानी कि ही हैज टेकन द रजिस्ट्रेशन वैलिडली अंडर GST। वहां पर क्या होगा, वहां पर if he fails to furnish, if he fails to furnish the return under section 39। अब यहाँ पर फिर से ध्यान से सुनिए, ये किस किस चीजों के लिए आ सकता है। ये 39 की रिटर्न यानी कि 3B रह जाए आपकी, 45 यानी कि फाइनल रिटर्न रह जाए, 39 और 45। तो एक आपको शो कॉज नोटिस आएगा दैट योर ऑफिसर इज मूविंग फॉर द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ इसमें एनुअल रिटर्न कवर्ड है? नहीं, इसमें एनुअल रिटर्न कवर्ड नहीं है। और वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। यहाँ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के बाद वो अगेन असेसमेंट तो कर देगा। अब ध्यान से सुनिए, ये चीज 73 74 से रूट नहीं हो पा रही, वो 73 74 से रूट नहीं हो पा रही, इसलिए इसका 5 साल का समय ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया, यहाँ पर इसको 5 साल पे ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 5 साल के अंदर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी, एंड देन अगेन ये अगर ड्यू रही तो 3 महीने के बाद रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर सबसे टिपिकल क्या हुआ, who fails to file the return under section 39 और 45, who fails to file the return under 39 और 45। क्या मैं आपसे बोलूं कि यहाँ एनुअल रिटर्न के अंदर अगर किसी ऑफिसर ने नोटिस निकाला सेक्शन 62 का, तो क्या वो सही होगा? सर बिल्कुल ठीक नहीं होगा, वो निकाल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिस सेक्शन इज लायबल ओनली फॉर द पर्पस ऑफ 39 एंड 45, यानी कि 3B और आपकी फाइनल रिटर्न के लिए है। इसमें आपको 15 दिन का समय मिलता है सर, इसमें आपको 15 दिन का समय मिलता है कि अपनी रिटर्न फाइल कर दो, अदरवाइज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? यहाँ पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब समझ लेते हैं, तभी हम कुछ चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे आगे। व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? क्वेश्चन है मेरा आपसे, बताइए। सोच रहे हैं सर, क्वेश्चन बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का क्या मतलब होता होगा आपके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द ऑफिसर, अंगद जी कह रहे हैं। ओके ओके अंगद सर, यहाँ पे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स। कैन आई से बेस्ट जजमेंट? राघवेंद्र जी कह रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड नॉट टू हिज जजमेंट। ओके, कैन आई से बेस्ट जजमेंट इज नॉट इक्वल टू द वर्स्ट जजमेंट? If the dealer have not filed any return with the available reports, he will do the cess. Yes, we can say best judgment cannot be ever said to be having a worst judgment assessment. इसका मतलब क्या बोलूं मैं आपसे? इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, अगर आप इस चीज से मेरे से एग्री करते हैं तो
जजमेंट कैन नॉट बी अ वर्स्ट जजमेंट असेसमेंट। लेट से अगर किसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, मान के चलिए अगर ये अपनी जनवरी फरवरी मार्च की रिटर्न फाइल कर रहा था, यहाँ पर इसकी टैक्स लायबिलिटी निकलती थी 10 लाख, इनपुट टैक्स होता था 2 लाख, फाइनल लायबिलिटी होती थी 8 लाख। ठीक है जितेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पर निकलती थी जी 6 लाख, यहाँ निकलता था 1 लाख, 5 लाख रुपए लायबिलिटी निकलती थी। मार्च में निकलता था जी इसका लेट से 7 लाख, 2 लाख, और यहाँ भी 5 लाख लायबिलिटी निकलती थी। अब उसने अप्रैल के रिटर्न नहीं फाइल करी और उसके लिए अंडर सेक्शन 62 नोटिस आ जाता है। अंडर सेक्शन 62 नोटिस आ जाता है कि जी आपके रिटर्न फाइल नहीं है, आप रिटर्न फाइल कर दो, अदरवाइज वी विल मूव टू द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? यहाँ पर ऑफिसर क्या असेस करेगा? व्हाट ऑफिसर विल असेस? व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ अप्रैल? लेट्स से उसको कुछ नहीं पता, तो वो की लायबिलिटी क्या असेस करता है? He can do the best judgment, not the worst judgment. Many Supreme Court rulings are in favor, which clearly says a best judgment cannot be a worst judgment. So when I say best judgment, worst judgment की equal नहीं हो सकती है कभी भी। तो यहाँ पर सबसे गलत एस्पेक्ट क्या होगा? उसको निकालनी पड़ेगी सर एवरेज। एवरेज, यस सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो खाली इस पोर्शन को देखेगा, आउटपुट को। He has to see the input also. He has to see the input also, यानी कि अगर मैं बोलूं तो उसको इसका एवरेज निकालना होगा, ना कि इसका। अगर उसने खाली सेल्स का एवरेज निकाला तो इट मींस इट इज अ वर्स्ट जजमेंट। हाउएवर इट हैज टू बी अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। यस यस विजय कुमार जी, बिल्कुल, विद द एवरेज टर्नओवर्स। एवरेज टर्नओवर नहीं बोलूंगा सर, मैं तो एवरेज लायबिलिटी बोलूंगा। फाइनल फाइनल लायबिलिटी तो यही निकलेगी उसकी। सर उसको इनपुट भी तो कंसीडर करना होगा, तो ये चीज भी कंसिडरेबली आपको साथ में चलानी है। ये चीज भी कंसिडरेबली आपको साथ में ही चलानी होगी। इज इट क्लियर से यहाँ तक? बिल्कुल सर। आर यू एंजॉइंग? तरुण जी, ऐसा कुछ नहीं लिखा नंबर ऑफ मंथ्स व्हिच विल बी यूज्ड फॉर एवरेज। I can say if it is for 1 month, then we may consider it. For 1 year, we can consider it. बट ऐसा नहीं कहूंगा कि सालों के सालों बहुत सालों की लेनी चाहिए। यस, रीसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से लेना चाहिए। व्हाट इज योर बेस्ट जजमेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन यहाँ पर जजमेंट। ऑब्वियसली अगर आपको लगता है नहीं जी मेरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मत करो, तो देन आप रिटर्न फाइल कर दो सर 15 दिन के अंदर। मैं तो ये कहता हूँ बेस्ट जजमेंट ओवर करने के लिए यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आप रिटर्न फाइल कर दो सर, चाहे आप कुछ भी रिटर्न कर दो, एनी रिटर्न विद एनी अमाउंट। सर यहाँ रिटर्न फाइल करने के बाद फिर देन इट हैज टू गो टू अंडर सेक्शन 61 स्क्रूटनी। फिर स्क्रूटनी के अंदर चली जाएगी, वहां पर आपको फैक्ट्स जस्टिफाई करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर इसको मैटर को क्लोज कर देना चाहिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को अवॉइड करने के लिए, सो दैट इट डज नॉट लीड टू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड लास्ट टाइप ऑफ असेसमेंट, दैट इज सेक्शन 63। सेक्शन 63 में असेसमेंट होती है किस चीज की? अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड असेसमेंट। विजय कुमार जी, ठीक है, बिल्कुल। अगर वो पोर्टल से जितने डेटा निकाल सके, बट कंसिडरेबली मैं ये नहीं कहूंगा कि एक लिमिटेशन के पीछे जाएगा वो, बट वो वहां पर सब्सटैंशियल डेटा इकट्ठा करेगा और सब्सटैंशियल डेटा पे बेस्ट जजमेंट होनी चाहिए। अभी आपको पता चलेगा सर, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा बेस्ट जजमेंट, वर्स्ट जजमेंट, और इन पे थोड़ी सी और डिस्कशन भी करनी है मुझे अभी, दैट आई विल टेक अप इन दी सर्टेन पीरियड ऑफ मिनट्स यहाँ पर अभी लेते हैं। बट अभी पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक बार समझते हैं, और अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है। वेयर अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन हु फेल्स टू ऑब्टेन। टैक्सेबल कौन होता है? जो रजिस्टर्ड हो या लायबल टू बी रजिस्टर्ड भी हो, यानी कि जिसकी टर्नओवर भी इवन क्रॉस हो गई हो, वो भी माना जाएगा आपका टैक्सेबल पर्सन। हु फेल्स टू ऑब्टेन, हु फेल्स टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और हुज रजिस्ट्रेशन, और हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29 2। ठीक है, द प्रॉपर assessment for and issue the order within the period of, यहाँ पर भी क्या पीरियड लिखा होगा? यहाँ क्या पीरियड लिखा होगा?
विद इन द पीरियड ऑफ 5 years। अगेन जहां बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात करी मैंने, वहां मैंने 5 साल बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट डिमांड ठीक है सर। give the registration, give the temporary registration, temporary registration देने के बाद निकाली जाती है। However, उस कोई भी liability without opportunity of being heard नहीं देनी होती। It has to be a why department is doing cancellation with effect from yes सर। यहाँ पर आपको अंगद जी इसका मैटर को अपील में ले जाना चाहिए। अंगद जी यहाँ पर इस मैटर को हमें अपील में ले जाना चाहिए जरूर 100%, जो आप मैटर ले रहे हो कि व्हाई दे आर कैंसिलिंग इट फ्रॉम इंसेप्शन। आइदर वे दे हैव टू डू इट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। हमें इतना पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें डेट ऑफ डिफॉल्ट से करना चाहिए, हमें इससे पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाह रहा था अनरजिस्टर्ड पर्सन की टेम्पररी रजिस्ट्रेशन देके उसकी लाइबिलिटी निकाल के उसके ऊपर प्रॉपर असेसमेंट यहाँ पे चल रही है, फिर ये रिकवरी प्रोसीडिंग पे चला जाएगा अगर 3 महीने से ज्यादा ड्यू रहेगा तो। विच प्रोविजन सर? नहीं सर, कोई पावर और प्रोविजन नहीं है सर। इट इज सर सर्टेनली साइलेंट एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस। ठीक है अंगद जी। सर सेक्शन 29(2) में आपने नहीं पूछा कि किस किस कारणों में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। सर सेक्शन 29(2) में आपने नहीं पूछा कि किस कारणों में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। ठीक है, अब पर्सन कोई जिसने, सर यहाँ पर कितने लिखा है लिखिए, जिसने कोई भी एनी कॉन्ट्रावेंशन किया हो, यहाँ पर ऑफिसर सुओ मोटो कैंसिल करता है। 5 इंस्टेंसेस हैं यहाँ पर। सेकंड, कॉम्पोजिशन डीलर जिसने अपनी 3 टैक्स पीरियड्स तक रिटर्न ना भरी हो, 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स तक रिटर्न ना भरी हो। ठीक है, सॉरी हाँ। नेक्स्ट यहाँ लिखा है रेगुलर पर्सन जिसने अपनी 6 टैक्स पीरियड्स तक कॉन्जिक्यूटिवली रिटर्न ना भरी। डी, एक ऐसा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जिसने बिजनेस 6 मंथ्स तक स्टार्ट ना किया हो। या ई, जिसने रजिस्ट्रेशन ही फ्रॉड से ली हो, जिसने रजिस्ट्रेशन ही फ्रॉड से ऑब्टेन की हो, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन या ऑपरेशन ऑफ फैक्ट से। यानी कि अल्टीमेटली घूम फिर के बात कहाँ आई? घूम फिर के बात आई कि आपका रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया, आप सप्लाई करते रहे, यानी कि आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है सर। अब मैं आऊंगा बड़ी एक इनोवेटिव किस्म की असेसमेंट पे, दैट इज समरी असेसमेंट। सर अब मैं आऊंगा यहाँ पर क्या हो, समरी असेसमेंट। सर समरी असेसमेंट का मतलब क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय समरी असेसमेंट? सेक्शन 64, ये न्यू किस्म की असेसमेंट है, ये कॉन्सेप्ट नया है, इसको नोट कर लेंगे। 64 में समरी असेसमेंट होती है। समरी असेसमेंट क्या होता होगा? व्हाट डू यू मीन बाय समरी असेसमेंट? सर समरी असेसमेंट क्या होता होगा, कोई बता सकता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय समरी असेसमेंट? चलिए मैं बताता हूँ सर। सर सब कहेंगे फिर आपको क्यों सेशन रखा हुआ है। सर समरी असेसमेंट यहाँ पर क्या है, अगर कोई एक एविडेंस आ जाए with the permission of AC and JC, proper officer to protect the interest of revenue, बिल्कुल ठीक विजय कुमार जी, to protect the interest of revenue, issue the assessment order, yes राघवेंद्र जी, issue the assessment order जहां उसको लगेगा कि डिले करना अननेसेसरी है। यस, जहां उसको लगेगा
डिले करना अननेसेसरी है। क्यों सर? आप मान के चलिए ये एक ऐसी असेसमेंट है जहां पर ऑफिसर को लगा कि कहीं असेसी देश छोड़ के ना भाग जाए या वो बैंक करप्ट ना हो रहा हो, तो वो एक समरी असेसमेंट करते हैं जल्दबाजी में, लमसम, और जैसे कि मैं बोलूं क्विक असेसमेंट। दिस इज द क्विक असेसमेंट दैट दे डू। क्विक असेसमेंट। मैं आपसे सबसे पहले डिफरेंस पूछूंगा, व्हाट डू यू हैव फील, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समरी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? व्हाट डू यू मीन डिफरेंस बिटवीन समरी और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? सर समरी असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में आपको फर्क क्या लगता होगा? जल्दी से बताइए। व्हाट डू यू हैव एज अ फीलिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है सर? ओके, टू ब्रिंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ओके सर, इसमें मैं एक इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो मैंने बेस्ट जजमेंट और समरी असेसमेंट में इतना समय लगाया, कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में वो एक ट्रेंड देखता है, वो एक ट्रेंड देखता है या एक एवरेज देखता है। बट यहाँ पर समरी असेसमेंट में वो ऐसा कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ लमसम करेगा और शायद खाली सेल्स के ऊपर टैक्स निकाल देगा। इनपुट इग्नोर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था इतना फैक्ट्स को देखने का। सिर्फ उसको लगा कि मेरे को टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू आई जस्ट हैव टू डू द असेसमेंट, आई जस्ट हैव टू डू द असेसमेंट। इज इट क्लियर सर यहाँ तक? सो ये एक बहुत बड़ा मेजर मार्जिनल डिफरेंस है यहाँ पर कि दोनों में फर्क क्या है। हाउएवर अगेन मैं आपसे बोलता हूँ, एक इसमें सबसे क्रिटिकल क्लॉज रहता है इसका प्रोवाइजो। इसका प्रोवाइजो कहता है वेयर अ टैक्सेबल पर्सन टू होम द लायबिलिटी पर्टेन्स इज नॉट ट्रेसेबल एंड इट इज अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी कि वो देश छोड़ के भाग गया है जिसने गुड्स सप्लाई किए थे, द पर्सन इन चार्ज shall be deemed the taxable person. They shall be deemed as a taxable person and liable to be assessed. यानी कि अगर ट्रांसपोर्टर के हाथ में पकड़ा गया तो ट्रांसपोर्टर मान लिया जाएगा और यहाँ पर उसको डीम्ड फैक्टर मानते हुए उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। हाउएवर अगर आपको लगा नहीं जी मेरे ऊपर समरी असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, ये नोट कर लेंगे, अगर आपको लगा कि मेरे ऊपर समरी असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, तो फ्रॉम द डेट ऑफ 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर, यानी कि आपको जब ऑर्डर मिलता है, ठीक है, इफ एसी और जेसी कंसीडर्स इट एज कि आपको नहीं, आपको 73 या 74 में जाना है, आपको वो अलाउ कर सकता है। वो 73 74 में जाने के लिए आपको अलाउ भी कर सकता है। So what considerably I am targeting here is that no doubt summary assessment is like a very quick and a fast assessment. In such circumstances only where AC and GC are disorders, आपको आपके ऊपर ये नहीं लगने चाहिए। 73 74 में केस रेफर करके 73 74 आपको फिर अलाउ किया जाएगा। एंड देन वो प्रॉपर जो मैंने आपको प्रोसेस 73 74 का लिखवाया था, इसी वजह से मैंने 73 74 को बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था, सो दैट यू हैव अ टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? यस। ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप की असेसमेंट्स जिसके हम चर्चा कर रहे थे रिगार्डिंग सेल्फ असेसमेंट। फिर हमने पढ़ा प्रोविजनल असेसमेंट, फिर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, फिर नॉन फाइलर्स, फिर समरी असेसमेंट्स। जैसे कि हमने एक चीज रियलाइज करी कि जब भी हम असेसमेंट्स की कंसिडरेबली बात करते हैं तो इट हैज टू बी ग्रुप्ड अंडर 6 सेक्शंस, 3 rules, and we have to understand that whenever we have assessment proceedings only in case of best judgment assessment, it directly moves to the demand and recoveries. However, in any other kind of assessment, it has to go through 73 and 74. Let's again say one thing, in assessments nothing has a conclusion where it has to go to 73 74,
When things go into 73, 74, वहां से फिर क्या करते हैं आप 73, 74 में जाने के बाद वहां से प्रॉपर प्रोसीजर होता है एडजुडिकेशन का आपकी, और उसके बाद ही आपकी डिमांड निकलती है। फिर आपके पास फर्स्ट अपील होती है, फिर सेकंड अपील होती है, देन आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। विजय कुमार जी कह रहे हैं वेदर इन समरी असेसमेंट आर नेसेसरी टू बी पास्ड अगेंस्ट टैक्सेबल पर्सन। नो नो, ऐसा नहीं है, कंसिडरेबली नहीं है, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर these are the type of assessments we have discussed. Now Rajesh ji, can we have a query session? And before actually we had to query session, I still want to write down my contact number on the screen. It is 8447137367. Still after the session, अगर रात को कभी कभी हम आंख बंद करते हैं और जीएसटी में कोई डाउट आ जाए तो आप you can call me or give me a missed call. I will surely try to help you with that. Let us move to the query session with the permission of Rajesh ji. अरे सर थैंक यू नाब्या जी। आपका ये डेलिब्रेशन ही इतना एलोबरेट था अपने आप में कि कोई क्वेरीज है ही नहीं। ओनली वन क्वेरीज विच इज पोस्टेड एट 4:12 PM एंड एक्सेप्ट दिस देयर इज नो क्वेरी एट ऑल। सो 4:12 पे एक क्वेरी पोस्ट की गई थी, वही है, और इसके अलावा कोई क्वेरी नहीं है। राजेश जी क्वेरी दो ही केस में नहीं आती, यहाँ तो सब समझ आ जाए कुछ भी समझ नहीं सर क्वेरी दो ही केस में क्या है, एक ही केस में समझ में नहीं आती। वो है कि जब आपका इतना एलोबरेट हो, अटेंडी को सब समझ में आ जाए तो क्वेरी रहती नहीं है। मेरे समझ में तो ये है। एनीवे, एक अजय सिंह जी का क्वेश्चन है सर, आप पढ़े या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ता हूँ सर, मैं पढ़ रहा हूँ। If a tax of GST paid under wrong head and later assessment come to know the correct head, what would be the right course? As to is pressuring to pay the correct head and take the refund of wrongly paid. सर ठीक है, बिल्कुल आप सेक्शन 77 के अंदर रिफंड में जा सकते हो इस केस में। एंड इस केस में लिमिटेशन पीरियड अगर आपका ओवर हो गया सर, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप रेवेन्यू न्यूट्रलिटी पे प्ली कर सकते हो इफ इट हैज अ मटेरियल इम्पैक्ट। हमने एक आध केसेस में ऐसा देखा कि अगर सही भी पे हुआ होता तो भी फाइनली लायबिलिटी वही निकलती। So in that cases you can take the plea of revenue neutrality. However, अगर आप रिफंड अदर रिफंड में लगा के अप्लाई करके देखिए, और अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। ये भी एक पीछे रिकोर्स मिला था कि आप इस केस को छोड़ देंगे और डिपार्टमेंट विल हैव अ रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड दे विल डू इट ऑन देयर ओन इम्पैक्ट एट द बैक एंड। ठीक है अजय जी? जी आई थिंक नाउ देयर इज नो क्वेरी सर। अब एंड करें या मेंबर से रिक्वेस्ट है यदि within a 1 minute or 2 minutes if there is any query, kindly hurry up in and post your query in question and answer box. Otherwise we will wind up it. 1-2 मिनट देख लेते हैं भाई साहब बस। जी, यहाँ पर लिखा है विजय कुमार जी ने पूछा है, if assessment is made against the warehouse, whether it will stand? Yes, it can stand only in summary assessments, not in any other case. Oh, if it is assessed in the warehouse, who is where the goods are kept, whether the Yes, warehouse keeper, yes, they will be assessed to tax. They will be assessed to tax. Yes, ji? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, वहाँ okay, पर जी. बिल्कुल। Okay, जी. Okay, thank you. एक क्वेरी आई है सर, उसको आप देख लें, पवन गुलाटी जी की। We are registered in Delhi and got work contract in Karnataka for सर पूरी क्वेरी नहीं लिखी उन्होंने, तो पवन जी मैं मान के चल रहा हूँ आप लिख रहे हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट या कुछ, आप लिख दीजिए, क्वेरी कंप्लीट कर दीजिए सर। सर एनीवे थैंक यू वेरी मच नाब्या जी थैंक यू सो मच सर for your beautiful deliberation on the subject, very elaborate. You for your precious time you apprise us on the subject while traveling and take so much pain for us, sir. Thank you for you that one also. And before the beginning I was under mind that only one type of assessment is there, but you very beautifully elaborate the assessment in 6 types of assessment, section 59 to 64. And I would like to thank you, sir, that you are always ready for the help of our member. And I can see that you are traveling to Yamunanagar, but still you are ready to help us, and you are using your
second of time for the benefit of the member. So I once again thank you. I also thanks to Vijay ji for joining us. And Thank you, Ji. I can say that, sir, thank you very much, sir. Thank you, Ji. Thank you, Rajesh.